साईराम बेटे, साईराम। विश्वास, पार्थ, यस सर। आज का क्या प्रोग्राम है? सर शायद नया चैप्टर चालू करना है, जो आखिरी चैप्टर रह गया ना सर हमारा, वो हम्म। चैप्टर चालू करना है। और उससे पहले नीरज साहू का एग्जाम करना है। यस सर। साईराम बेटे, साईराम। So Neeraj Sahu is not here. सर अभी तो नहीं है। सर मैं कॉल कर देता हूँ मैं अभी। ठीक है। Let's wait for some more time so that the remaining people can join. साईराम सर। Sairam. Palak also left out, no? Palak is also not attended the exam. Aditya, Yes, sir. have you informed the Palak Yes, sir. what she said? सर वो अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? फीवर आ रहा है। फीवर है। उसको बोल देना कि ये जो एग्जाम हुआ इसमें एब्सेंट मार्क करके चलेंगे, ठीक है? Yes, sir. स्कूल में इन्फॉर्म किया हुआ है उन्होंने कि तबीयत खराब है? No, sir. तो उनको बोल देना, क्योंकि जो असेसमेंट चल रहे हैं बाकी सब्जेक्ट के, सर बाकी सब्जेक्ट की कुछ के दिए हैं, कुछ के नहीं दिए हैं। ठीक है। सर नीरज सर आ रहा था 5 मिनट में अभी। All right, everybody close your eyes and join your hands. Start Omkar thrice. Saira. So as you all are aware that only two students, one is Palak Kavra and second is Neeraj Sahu, they only left out with the second assessment exams, right? So Palak, I think, is not feeling well, but she has not informed to us. So in that way, we will mark absent to her, right? The right
process is to write the application to the principal and seek the permission not to attend the exam. All right. But as such, I am not having any information. So I will mark absent to her. And today we are having the Neeraj Sahu with us. And Neeraj Sahu is going to Saira. Neeraj Sahu's topic is, Neeraj, listen carefully. Yes, sir. You have given the three topics, that is cause of less participation of Indian women in sports. Second topic, physiological factor determining strength. Third topic, physiological factor determining endurance. So I am just giving you topic number 3, physiological factors which determine the endurance. So this is your topic over which you have to speak, right? And I am giving you 2 minutes Yes, sir. to start. All right. And you have to open your window and then you have to start speaking. Yes, sir. Right. Okay. तो अभी आप आराम से अपनी तैयारी कर लो, अपने पढ़ लो जो भी पढ़ना है. After 1 minute or 2 minutes, I will start with you. Yes, All sir. right. Now, some few important things which I am just informing you that very soon we are also going to have all kind of activities. You might be invited to have the doubt clearance in the doubt clearance classes in small groups, and where we will try to complete our practicals. Theory of the practical examinations will be covered on this online platform, but the practicals which we have to complete, the knowledge which we have to complete on the ground or in the other subject, these all have to be covered, right? So I will invite you in the small group in 2 days or 3 days, and then we will have the practical examination, practical preparation. So we prepared about that, right? Small. Suppose we are how many students in the total? In total, 19. 19. So in maybe in 2 groups, one day 9, one day 10. I will invite, and according to that, I will try to manage the things with the social distancing, with following all the COVID norms. Everything we have to follow, and not only in the school, but when you are coming from the home and when you are going back to the home, you have to be more conscious, more aware, more careful about yourself when you are moving, because if you go in the cities, the people are basically not following and they are only on the dangerous side. So we have to protect ourselves with the care and caution, right? So whenever I'm going to invite you, I will inform you that. All right. Now, I hope Neeraj is ready Yes, with the sir. topic. Yes, Neeraj. Sir. My topic is physical factors of endurance, determining endurance. Endurance is an important component of physical fitness. It is an ability to withstand fatigue, and it is an endurance is an aerobic and anaerobic, and its factors is maximal oxygen uptake and pulmonary diffusion, cardiac output, and lactate threshold, and blood volume and flow, and
तो ये थे अब maximum oxygen uptake in maximum oxygen uptake to highest rate refers to highest rate during the exercise. And pulmonary diffusion is exchange of oxygen and carbon dioxide in lungs and blood, and more faster pulmonary diffusion is improves endurance, and cardiac output is ability to heart to pump in a 1 minute, and lactic base threshold. It is ability to tolerate the lactic acid in blood produced during the aerobic activities, and blood volume and flow. Endurance activity needs sufficient oxygen and nutrients transport which are transported to blood by blood and hydration. Endurance endurance activities are doing that time sweating, and by sweating important minerals are out from the body. Sir, it's done. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीरज, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम तो होने हैं बेटा। यस सर। और ये सारे लोग सुन रहे हैं जो बाकी 11 बैठे हैं। एग्जाम तो होने हैं, प्रैक्टिकल तो होने हैं, मर्जी आपकी है। क्योंकि एक तो रेगुलर क्लास में हम लोग हैं नहीं। यस सर। कभी इधर है कभी उधर है। देखो हमारे जितने बेस्ट एफर्ट्स है ना, दैट वी आर ट्राइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन आप लोग मस्ती से निकल के बाहर आ जाओ बेटा। ये ऐसा दौर चल रहा है अभी जिसमें माँ बाप अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हैं। आप लोग उनके लिए समस्या नहीं, उनकी शक्ति बनना पड़ेगा आप लोगों को। और उनकी शक्ति आप तभी बन सकते हैं जब आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करें बगैर साल खराब किए। और मैं एक नीरज को नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं ये ज्यादातर लोगों को बोल रहा हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा। हर टीचर इस स्कूल का आपके लिए पूरा लग के काम कर रहा है। एग्जाम तो होने हैं, पोस्टपोन नहीं होंगे। आपके रजिस्ट्रेशन आप करा चुके हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे, हर चीज होगी आपकी। मैं भले ही अभी आपके बिल्लों से बात कर रहा हूं, योर बैचेस, आई कैन ओनली सी योर बैचेस, बट मैं अपने दिल की बात जरूर बोल रहा हूं आपको। यू पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर सेल्फ। बड़ा बुरा लगता है जब आपकी प्रिपरेशन वीक होती है, और जब मालूम है कि एग्जाम चल रहा है, उसके बाद मालूम है कि ये मेरे 3 टॉपिक हैं, उसके बाद बोलने वाले ये भी बोल सकते हैं आप जैसे बच्चे हर साल मेरे बैच में आते हैं और हर साल चले जाते हैं, बट मैं आई फील बैड।
आपको सोच समझना है। नवंबर ओवर, टुडे इज 25th, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम, मार्च और मे बी मार्च और अप्रैल में आपके बोर्ड एग्जाम्स। आप समझ रहे हैं बात को? ये हैंगओवर से बाहर निकल आइए। पढ़ाई वैसे कीजिए कि जैसे आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हो। पूरी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनिए, टेबल चेयर पे बैठिए, लीव इट एट सोफा और पलंग। सिट ऑन द चेयर फॉर 45 minutes, then have 2 minutes break and then again come in the class. बैठो बेटा, वैसे करो पढ़ाई, उस मोड में आ जाओ। बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो 90% वाले बच्चे हैं वो 70 पे आ जाएंगे, और जो 70 वाले हैं वो 50 पे आ जाएंगे, और जो 50 वाले हैं वो 33 पे ना रह जाए। मोड को चेंज कर लो बेटा। आई एम सेंडिंग द लिंक। और नीरज साहू, प्लीज ओपन दिस लिंक एंड फिल इट। Everybody has done it? Now we have to assess Neeraj Sahu video for yoga. Sairam, all of you, myself, Neeraj Sahu. This I'm presenting Chakrasana. Chakrasana is we pose asana. It's a backward bending asana, and it gives a greater flexibility to the spine and Sir, video is not visible. Oh, sorry, सर sorry, शेयर sorry, sorry, my fault. My fault. Sorry. डांट लगाना इतना आसान काम थोड़ी है यार। Sairam, all of you, myself, Neeraj Sahu. This I'm presenting Chakrasana. Now you can see. We pose Yes, sir. asana. Yes, sir. It's a backward bending asana. It gives a greater flexibility to the spine and its final position that look like a wheel. इसके हाथों की पोजीशन, जो पाम की पोजीशन थी वो उल्टी थी। Flexibility to the spine
diabetes, and its proportion is uh, uh, not suitable for big people, and those women are pregnant are not from this art. हाँ नीरज, कैसा लग रहा था? चलिए नीरज भैया के लिए लिंक भेज रहा हूँ योगा की, उसको भी फिल कर दीजिए। I hope you have got the link. Yes, sir. Saram sir. Sairam, बोलो Yes sir. बोलो बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ रही है क्लियर। अब आ रही है? चलो गुड। यस सबके रिस्पॉन्स डिपॉजिट हो गए बेटा? सबने कर दिए? यस सर। Yes, sir. चलिए सबने कर दिए हैं। अब मैं रिस्पॉन्स लेना बंद कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट नोबडी कैन रिस्पॉन्स नाउ। चलो ऑल राइट, एक मिनट के लिए सारे लोग विंडो खोल के रखो। एवरीबॉडी फेस टू फेस। आदित्य, Yes, sir. माइक को म्यूट रखो। मोहम्मद कैफ और नमन सोनी, हार्दिक, एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर विंडो। मोहम्मद, हार्दिक, विकास, प्लीज ओपन योर विंडो। सर ऑन है सर। मैंने कहा किया। ओके राइट। अब बात ऐसी है, नवंबर इज ओवर, ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने, 5 सब्जेक्ट, इसको ध्यान से समझ लो। और जो करेगा वो इस 12th को पास कर जाएगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होने के कारण आप बहुत कैजुअल रहे कई जगहों पे। तो चीजों को समझ के अपने आप को संभालो, ठीक है। हर व्यक्ति को मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे बेटा तो एग्जाम पास हो जाएगा। हमारी कितनी नॉलेज है ये योगा के वीडियो से क्लियर हो गई है। हमारी कितनी नॉलेज है ये एक्सटर्म कोर्स से हमारी क्लियर हो गई है। कितना हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये सब पता लग रहा है, अप्रोच पता लग रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज डू समथिंग, प्लीज बी कॉन्शियस। सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक का प्रोग्राम तैयार कर लो अपनी पढ़ाई का, क्योंकि कुछ लोग अभी हैंगओवर से बाहर नहीं निकले।
भाई 12th का एग्जाम तो दोगे ना? कितने लोग एग्जाम देना चाहते हैं? जरा लिखो चैट बॉक्स में यस कि सर 12th के एग्जाम मैं नहीं दूंगा। जो नहीं देगा वो लिखे, जो नहीं देगा वो लिखे। 30 सेकेंड्स। सर बाय मिस्टेक लिखा गया है वो जल्दी जल्दी में। 30 सेकेंड्स। जो एग्जाम नहीं देगा नो लिखे वो। नो सर, नो। देखूं मैं। आप समझ रहे हैं? सबको एग्जाम देने। हो गई मस्ती। चल रहा है कोरोना, और कोरोना खत्म नहीं होगा, चलेगा। आपको और हमको 2024 में जाके मिलेगा जो कुछ भी है हमारे हिस्से में, क्योंकि हम 18 से नीचे के नहीं है। ठीक है ना? तो जो यंग है उनका नंबर सबसे लास्ट में आना है। समझ रहे हैं बात को? वर्क हार्ड फॉर द स्टडीज। ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, अपना टाइम टेबल अच्छे से बना के, जो भी आपके पास में अवेलेबल है बेस्ट डू इट। ये ऑनलाइन ही चलनी है सारी चीजें, और जब जब जरूरत होगी तब तब थोड़े थोड़े हम लोगों को, जैसे डाउट क्लासेस के लिए आपको बुलाना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हमको देखनी पड़ेगी। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी समस्या हो जाएगी। मुझे डर है कि बहुत सारे लोग फेल ना हो जाए, क्योंकि अभी मैं योगा में भी देख लिया, एक्स्ट्रापुर में भी देख लिया ना। हमारी पढ़ाई चैप्टर फोकस्ड हो पाई है ना, टॉपिक फोकस्ड हो पाई है। प्री बोर्ड होगा, ध्यान रखना, और नवंबर एंड में या जनवरी में प्री बोर्ड होना है, जो मेरा दिल कहता है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस। अभी 3 चैप्टर आ रहे हैं ना, 3 सब जुड़ के 9 10 पूरा का पूरा सिलेबस आएगा। थोड़ा सा अब जल्दी उठ के अपने आप को प्रॉपर चैनल में डाल के, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ना। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैंने रोक के बोला आपको कि आज आपसे बोल दूं कि भैया ये मैंने ले लिया एग्जाम, एग्जाम से पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है? विश्वास शर्मा जी। यस सर। सर साई राम सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। अगर सर पढ़ ले। हाँ बोलो। सर आज पूजा थी सर, इस चक्कर में सर नहीं आ पाया सर, मैं लेट हो गया। मैं बोल तो रहा हूँ, पूजा पाठ फुल करो, सबकी सेवा भी पूरी करो, बस पढ़ाई मत करो। क्लास में लास्ट में आओ, पहले सबकी सेवा करो, पूजा पाठ करो, बस उससे काम बन जाएगा। 12वीं क्लास में अगरबत्ती लगा के आएगी फिर पेपर में अपन। वही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि अब सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक का अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बना लें, उसको करें। समझ रहे हैं विश्वास? यस सर। हाँ, सारे काम आप ही के नहीं है, घर में बहुत सारे लोग हैं। आपका काम अभी पढ़ाई है 12वीं क्लास, 3 महीने रह गए, दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च में एग्जाम। तो थोड़ा जाग जाए आप। ठीक है? चलो। यस सर। तो हमारे सेकंड असेसमेंट सबका हो गया एक्सेप्ट पलक काबरा। कोई ऐसा बच्चा रह गया हो जिसका नहीं हुआ हो? चलिए आज एक लास्ट चैप्टर हम लोग सरसरी नजर से देख लेते हैं कि हमको उसमें क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद में आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है।
Last chapter is training in sports, right? In that, the things which I have already taught, half of the things you have already known, which we have taught in the 11th class. Strength, what is the definition, type and method of improving the strength, right? This isotonic, isometric, isokinetic. This is one of the topic which we are going to discuss in this class. Second, method of improvement of strength. अब इसमें आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक टाइप की एक्सरसाइजेस क्या होती हैं वो सारी इसके ऊपर डिस्कशन होगा. देन अगेन यही अभी एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे. After developing strength, after understanding strength, endurance. Again, definition, types and method to develop the endurance. Now, what are the methods? Continuous training method, interval training method, and fartlek training method. ये endurance develop करने के method है. This we are going to understand in this chapter. Then after strength, speed. Strength, endurance के बाद में speed. Now, what is speed? Type and method of developing speed. अब कैसे डेवलप करते हैं स्पीड? तो स्पीड, एक्सेलरेशन रन, पेस रन एंड रिएक्शन टाइम, ये तीन चीजों से हम स्पीड डेवलप करते हैं. मेथड ऑफ डेवलपिंग. देन फ्लेक्सिबिलिटी, टाइप, डेफिनेशन एंड मेथड टू इंप्रूव. डायनेमिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग. After that, coordinative abilities. Now again, what is coordinative ability or what is agility? Its definition and its types. How we can develop this agility, right? So this is all about the development of different physical components. And remember, in sports training, we always try to focus it on the development of physical fitness components. Then circuit training method. What is the circuit training method? How we can use the circuit training for improving different kind of the physical fitness components. So this also we are going to discuss in this chapter. ये stations हैं. Circuit means the exercise we set in the circuit. Station 1, station 2, station 3, 4, 5, 6, 7, 8. It may be 6 or it may be 12 station, depending upon the choice, right? So this also we are going to understand in this chapter. All right. And the syllabus will be over after that. अगर इस वाले चैप्टर को ध्यान रखना कि कोई एब्सेंट ना हो, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट सब चैप्टर है. तो कोशिश करें जो लोग अभी तक क्लास में आगे पीछे भाग रहे हैं वो ना हो और टाइम से क्लास में आ जाए. और टाइम से क्लास में आने से उनको एडवांटेज ये रहेगा कि उनको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी. लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मेरे पास में है, उनको भी मैं आपको कराऊंगा, उनको भी मैं आपको दूंगा. बट देने का फायदा तभी होना है until unless you come in the class and practice that all the things which I am providing to you, right? So आज के लिए मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं 5-10 मिनट में कुछ ज्यादा चीज कवर नहीं कर सकता था. So in the next class we will start with the training in sports and we will start with the strength developmental definitions, types. This all we are going to start with next class, right? कोशिश करें सारे लोग रेगुलर रहे क्लास में. पलक को मोटिवेट करें कि अगर वो परसों तक ठीक हो जाती है तो अपना योगा कोई भी एक योगा का आसन
का वीडियो बना के वो अपलोड करें और अपने एक टॉपिक को तैयार रखें जिससे उसका असेसमेंट कंप्लीट हो जाए. ऑल राइट, थैंक यू एंड साईराम फॉर टुडे. You may leave the class today, but be prepared. Everybody has to come on time from day after tomorrow. Thank you. विश्वास.